آئے ہو؟ وہ یار کوئی تھوڑا جا نزلہ جا لگا سی تے اللہ لکھیا رحم سی کرے۔ اسی سے رات دے بیٹھے تو وڈیکاں چ سونے ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا یار دوستو، سارے دوست توجہ کریں، یہ میرا اکاؤنٹ نیا ہے تو بقایا سارے اکاؤنٹ تو وہ ٹینشن میں چلے گئے ہیں۔ تو جس دوست نے ابھی تک میرے اس اکاؤنٹ کو فالو نہیں کیا وہ فالو کریں اور اس اکاؤنٹ کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ٹھیک ہے، آپ بات جاری رکھیں شاہد بھائی۔ نہیں مفتی صاحب ہوں تسی آ گئے تو میں سرکارہ میری کی ضرورت۔ اچھا جی، چھوٹا مرزا اور وڈا مرزا موضوع ہے۔ جی جی ہاں صحیح ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب ذرا اس کی جو آپ وہ ویڈیو پلے کر سکتے ہیں جس میں یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کا قرآن اور یہ پڑھنا چاہیے یہ؟ جی جی، قادیانیوں والا قرآن وہ جی کہتا ہے کوئی بندہ انکار کرے گا تو پھر ویڈیو پیش کر دیں گے، کوئی ہے کوئی نہیں نیچے بات کرتے؟ یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں جناب قاسم صاحب۔ ہاں کون قاسم صاحب ہیں جناب؟ حسن نہیں، حسن نہیں ہے، حمزہ قاسم حمزہ قاسم حمزہ وہ اوپر آ کدھر جاؤ، ہے؟ وہ نیچے نیچے بیٹھو، کمنٹوں کے اندر؟ کمنٹس میں کہتے میں نے اوپر نہیں آنا۔ ہاں نہیں یہ وہ نہیں، وہ فیک اسلامی آئی ڈیز ویڈیو، ہوتی ہیں یہ ساری۔ یہ کمنٹوں پر تو کوئی یقین بھی نہیں نا، بس فارغ اسلامی لوگ ویڈیو ہوتے ہیں بیچارے۔ یہ کون ہے جی؟ اصل میں جس کو کوئی بات کرنی ہو سامنے آ کے بات کرے، یہ طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا۔ جی اسلامی ویڈیو، جی اسلامی ویڈیو کوئی گل کرنی ہے تو ہیلو میں نہیں بول وعلیکم جی السلام۔ جی اسلامی ویڈیو کوئی گل کرنی ہے پلیز؟ میرے خیال ہے جو پھول ہی نہیں وعلیکم سما رہے میں السلام۔ اتنے بہ گیا، جی پھول ہی نہیں سما رہے ہوتے میں اتنے آ گیا۔ یار اس کو نیچے اتارو، پوری محفل کو خراب کر رہا۔ تھینک یو۔ اچھا ولی صاحب یہ جو اس بندے نے بات کی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ نوز باللہ قرآن اس فرینچ زبان میں پڑھ رہے اور یہ گالیاں اور یہ جو حوالہ دیا ہے اس کو کہتے ہیں گستاخی میری جان، ٹھیک ہے؟ تو ممبر پہ بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو، ٹھیک ہے، نوز باللہ۔ اب آگے سنیں تھوڑا سا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ جی صحابی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل حقیقت ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ یار دیکھو کہ کلمہ کن کا پڑھنا ہے؟ محمد صلی پلیز، اللہ علیہ وسلم۔ تو جو اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں سامنے آپ کے ہیں سرکار ہیں، اس سے بڑی بات ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ تو خوش قسمت انسان ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں، بالکل ٹھیک ہے؟ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت اور احترام کسے کہتے ہیں۔ آگے یہ سنیں، تو جاہل آدمی ہے نا۔ آگے سنیں جی۔ قاسم ہے تو تھلے سننا نہ پیا، تینوں اورل سیکس کروانا میں جا سکھانا میں تین تھوڑی دیر بعد۔ ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، صحابی۔ ہم ڈیفینیشن ہی بھول گئے صحابی دی، جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا وہ ڈیفینیشن ہی بھول جاؤ گے۔ جب نبی علیہ سن لیا، آگے سنیں۔ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول اللہ۔ اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں۔ حضرت علی مفتی صاحب یہ کیا قصہ تھا، ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے، سلیبیہ کے بارے میں۔ شاید بھائی میں نے سنا نہیں ہے، تھوڑا سا مصروف تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں ذرا دوبارہ سناتا ہوں آپ کو۔
के मौका पर, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिटाऊंगा मोहम्मद रसूल दो सुलह दे। जब नबी इस्लाम ने हजरत अली से कहा था कि मेरा नाम मिटा दो सुलह देबिया के मौका पर, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिटाऊंगा मोहम्मद रसूल। अगर हुक्म को अदब पे फौकियत दी जाए तो उन्होंने गलत किया। जी मुफ्ती साहब, सुलह हदैबिया का जो मामला था, बेअदब आदमी है वो। हम्म, सुलह हुदैबिया का जो वो एक वो लेटर था, जो वो दस्तावेज थी जो लिखी गई थी ना, तो उसमें अकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा नाम यहाँ से मिटा दो। तो हजरत अली ने, मौला अली तो वो फिर मौला अली है ना, जो इल्म का दरवाजा है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, और मौला अली जो है, जो अली है रजी अल्लाह अन्हु, ये उस शहर का दरवाजा है, इल्म के शहर का दरवाजा। तो उनको तो पता है असल बात क्या है कि हजूर क्या फरमा रहे हैं और मैंने क्या करना है। वो कोई वो सहाबी थे, वो कोई मिर्जा जूनियर जेल में या मिर्जा सीनियर तो नहीं थे ना, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, गुस्ताख। हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला क्लिप्स लाने से पहले जी, मानी राजा साहब कोई सवाल करना है? हेलो मिस्टर मानी राजा साहब, ये उत्ते आके बहन का कोई फायदा नहीं है, प्लीज जी कोई सवाल है जैसे करो। अच्छा जी, अगे सुनो जी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? 10 सहाबी भी ऐसे यहूदी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान ला के आए, नौजुबिल्ला। आगे सुने ये क्या कह रहे हैं। उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके मिलेगा, वो कहते थे नौजुबिल्ला। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस अल्फाज से पुकार रहा है कि इस तरह से उनको पुकारा जाता था, हालांकि कोई ऐसी हदीस, कोई ऐसा वाकया कोई नहीं है। ये अपने मुंह से बकवास कर रहा है, अपने पल्ले से ये अल्फाज कर रहा है, फिर कहते हैं कि हम बातें करते हैं। मुफ्ती साहब जानते होंगे इस वाक़े के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुजरते थे तो एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मिट्टी फेंका करती थी। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से गुजरते थे, वो यहूदी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मिट्टी डाला करती थी। तो जब एक दिन नहीं डाला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उसकी वाकया नहीं है, ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये लोगों ने गलत मशहूर किया हुआ है। इस बात पे ना वलीद साहब पहले भी इस बात का जिक्र हो चुका है। अच्छा, ठीक है, ऑथेंटिक कोई ऐसी हदीस नहीं है, कोई ज़ईफ भी हदीस नहीं है ऐसी। अच्छा, ठीक है, तो जो बात हो जी मुफ्ती साहब आप बात करें। नहीं, मैंने तो बता दिया है कि ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये मशहूर लोगों ने मशहूर कर दी है। यार दोस्तों, जिन्होंने अभी तक आजिज का ये वाला अकाउंट फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें। ये मेरा नया अकाउंट है तो इसको फॉलो कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ये क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है? जी ठीक। जी भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो भाई ने भी अर्ज किया है कि एक औरत जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मट्टी या कचरा वगैरह फेंकती थी, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं ये ऐसी हदीस जो है वो नहीं है, लोगों ने अपने से बनाई हुई है। जबकि हम शुरू से दीनियात की किताब में, इस्लामियात में, क्लास में यही पढ़ रहे हैं, ये बार बार इस चीज का जिक्र हुआ है। ये जो भाई ने बात की है कि ये वाकई हमारी कुताब में हमने पढ़ा, अपनी किताब में। आपका जो निसाब मुरतब करते हैं ना वो कादियानी लोग और कुछ दहरिये बैठे हुए हैं आपके टेक्स्ट बोर्ड के अंदर, तो वो इस वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये ऐसी बात है तो फिर पिछले 7-8 साल में ये जो फर्स्ट क्लासेस हैं इनमें तो ये बात आम है, हर एक किताब में ये है बात।
तो फिर अच्छा वो मेरी सब बात बना सुनो, पा रहे हैं, नहीं, या ये ऐसा नहीं अल्लामा होना खादम चाहिए कि साहब ये रिजवी साहब ने चीज इस किताब में से मसले निकलनी को चाहिए। इस मसले को छेड़ा था, तो उसके बाद से तो निकाल दिया गया है शायद। अब अच्छा अभी भी जी, कहीं है तो बताएं, कोई है वो? अच्छा बात ये है कि मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अगर ये मैंने तो नहीं पढ़ी, ठीक है, मैं जब छोटा था मैंने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी, दीन हयात में ऐसी कोई मेरे सामने से इबारत नहीं गुजरी, ठीक है। लेकिन अगर मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जो आपकी किताबें छापते हैं वो कादियानी लोग हैं, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। रहमतुल्लाहि तो वबरकातुहू। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान दे टोटे। शाह साहब बिल्कुल किताबां ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਨ। सही। अच्छा ये बात मुफ्ती साहब आप ही जवाब दें कि ये देखें कोई भी ऐसी चीज़ जो किताब में लिखी जाए जिसकी अथेंटिक हदीस नहीं है, तो ये तो फिर हमारे पब्लिशर और गवर्नमेंट का कसूर है ना, कोई इस तरह का लिटरेचर वो छपाना और लोगों के जेहन में जी हाँ, डालना। जी हाँ, जी हाँ, उनका कसूर है। और ये बात तो बिल्कुल आया है, और लोगों को नहीं पता तो नहीं पता, क्या कर सकते हैं कि भाई आप के जो टेक्स्ट बुक्स छपती हैं आपके स्कूलों कॉलेजेस में, उनके पीछे जो तबका बैठा है आपको पता ही कौन नहीं है वो कौन है, वो अच्छा, उनका माजरत माइंड चाहता सेट हूँ। क्या है, किस किस्म के लोग हैं, कौन हैं, आप नहीं, आप हजरात जानते। मुफ्ती साहब, एक ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा नॉलेज है तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँ। ये वाकया मैं अभी बस अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था तो मुझे अभी भी याद है कि ये पाकिस्तान के अंदर इस्लामियात की किताब में 5वीं और 6ठी की किताब में ये वाकया जी है। हाँ, वो बचपन में हमने भी पढ़ा है कहीं, जी तो वो होता था, लेकिन अब तो नहीं है मेरे भाई। अब की बात करें, अब नहीं, अगर अब है का तो मुफ्ती साहब ये वाकया तो हमने जो पढ़े हैं तो हम तो भी याद है, अब के तो पता भी नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, अब तो जी अब पाकिस्तान से भी नहीं है। और ये बस गलत चीजें कई जो है ना वो मंसूब कर दी गई। ये वैसे ही है कि जैसे वो चिश्ती रसूलुल्लाह किताब के अंदर डाल दिया गया, मंसूब कर दिया गया, वो छाप रहा है। हाँ जी, तो ये बातें हैं, और उसको भी शायद अब निकाल दिया गया है। तो ये बातें हैं कि ये ऐसी कई गलत बातें होती हैं, वो मंसूब कर दी जाती हैं। तो वो जो मंसूब की हुई बातें, भाई आप मर जाते हैं, आपके मरने के बाद आपके बच्चे या आपके बच्चों के बच्चे कोई आपकी लिखी हुई किताब के साथ वो बेड़ा गर्क ही कर दें, वो कुछ का कुछ ही छाप दें बीच में, तो क्या वो आपका गलती आपकी होगी? ऐसे तो नहीं होगा। या आपके बच्चे या आपके बच्चों के बच्चे जो हैं वो आपके मलफूजात लिखें, जी मेरे हमारे दादाजी या परदादा जी ने ये बात कही थी, तो वो तो हालांकि आपने वो बात कही नहीं है, तो जी। कसूर तो आपके बच्चों का होगा ना कि आपका। जी। आपका क्या कसूर है? जी। नहीं, कम से कम देखें, अभी इस वीडियो को तकरीबन 1 लाख के करीब लोग देख रहे हैं, तो कम से कम इतने सारे लोगों में अवेयरनेस तो गई है ना कि भले से अगर ये गलत वाक़या है तो इतने सारे लोग तो इसको अब रिसर्च भी वो करेंगे तो कुछ ये लोग। तो सिर्फ इस एक ब्राड की वजह से ही तो नहीं ये बात गई। ये तो अल्लामा खादम साहब रिजवी जब हयात थे उन्होंने इस मसले को छेड़ा था। हाँ हाँ, वो तो पूरी दुनिया को पता चल गया अब तो। अच्छा अच्छा। ये हमें भी जो पता चला है, मुफ्ती मुबशर शाह को जो पता चला है, ये शाहिद भाई को जो पता चला है, ये भी अल्लामा खादम साहब रिजवी की वजह से पता चला है। ये तो हमें भी नहीं पता था, वो तो बड़े वालेकुम आलिम थे सलाम। ना, वो जी उनको जी ज्यादा बिल्कुल। इल्म था। अच्छा जी, अली साहब आए हैं जी, कोई जी अली भाई आपको कुछ बात अस्सलामुअलैकुम करनी है? सब भाइयों का। वालेकुम जी सलाम। हाफिज, मैं मुबशिर भाई से पूछना चाहता हूँ, ये जो पाकिस्तान में अभी भी ये मस्जिदें बना रहे हैं, कौन? ये कादियानी? जी जी, इबादत गाहें तो बनाते हैं, अभी भी हैं, बड़ी हैं। अच्छा जी जी, ठीक, मस्जिद क्योंकि नहीं मैं इनको कहते, हम मिर्जवाड़ा कहते हैं। ठीक 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 ठीक, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता नहीं हूँ असल में, मैं जिधर रहता हूँ, मैं जर्मनी में रहता हूँ, इधर इनकी तादाद है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाँ इनकी बस तादाद। वो ये है कि ये
ये लोग दादे बने हुए हैं। नहीं असल में ना है अगरचे तादाद में कम, लेकिन इनका फितना ज्यादा है। ये मैं पूरे मैं पाकिस्तान को कंट्रोल यही लोग कर रहे हैं, और बिल्कुल बड़ी बिल्कुल साजिश हो रही है, बड़ी एक मैं ना मैं आगे भी एक ना ब्रॉड पे बैठ के बता चुका हूँ। ये जो पाकिस्तान में बड़े लोग हैं ना, जो बहुत बड़े हैं, बताते नहीं किसी को, क्योंकि फिर ऐसे इनके खिलाफ आवाज़ें उठने लग जाएंगी। जो पाकिस्तान में जो फैसलाबाद का बहुत बड़ा बैठा है, अभी का पता नहीं, पहले का था थोड़ा सा ना, पहले 2-4 साल पहले चले जाएं पीछे, फैसलाबाद पे आगे पीछे 2-4 शहर हो रहे हैं। इनके बड़े जो बड़े थे ना, सबसे बड़े, रबुआ वो सब बिल्कुल बिल्कुल वो सब कादियानी थे सब। ये और इनका एक है, इनकी लॉबी है ना, जो इनकी लॉबी बहुत मजबूत है, बहुत। अली भाई मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ, जो लबे लुबाब है ना, ये है मेरी जान से जी टोटे, जी कि पहले इनका असर रसूख रबुए में बहुत ज़्यादा था। अब माशाल्लाह वहाँ पर ये बहुत कम हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला मरज़ियत जो है ना, मरज़ियत, ठीक है, वो ख़त्म हो रही है। लेकिन नहीं भाई ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इनकी अपनी गलतियों की वजह से ये हमारी मुक़द्दस सीटों पे बैठे हुए हैं और मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अभी जो एक नीचे सारे कह रहे हैं कि नेचुरल कौन है जी, नेचुरल नेचुरल लाइफ। नेचुरल भाई लाइफ, नेचुरल लाइफ साहब, यार प्लीज़, आप जो है ना, आपके मासूमाना सवाल सबको पता है कि इस तरह नहीं है। तो मैं माफ़ चाहता हूँ, नेचुरल लाइफ प्लीज़ कॉल डालो, मैं आपको कॉल पे लेता हूँ। तो मेरी जान दे टोटे, आप फिक्र नहीं करें। मैंने कॉल चेक की नहीं है, नहीं प्राइवेट अकाउंट है, भाई वो नहीं डाल रहा है। भाई मैं अच्छा, ना मैं ये पाकिस्तान रब्वे से ख़त्म हो रहे हैं, ये सब बाहर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे इनका पता है ना। मैं आपको कुछ बताता हूँ, मैंने पहले भी आज सुबह भी एक ब्रॉड पे बैठ के बताया था। ये आप लोगों को आप लोगों को शायद मजाक लगेगा, लेकिन आपको सच बताऊंगा मैं। भाई ये असल में ना, ये इनको ना, ये वाले घूमते हैं ना, जो गवर्नमेंट, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की गवर्नमेंट है जो, ठीक है, ये इनको करती है सपोर्ट, क्योंकि ये अब ना इन्होंने अपनी इधर, जैसे भाई ने, मुफ्ती साहब ने पहले कहा, वो मस्जिद तो है नहीं अपनी, जो इनकी इबादत का है, ठीक, वो उनके उसने पहले वो इधर आके बनाई है, इधर के लोगों को, क्योंकि ये पहले आके लोग हमें जानते हैं मुसलमानों के नाम से, पाकिस्तानियों के लोग समझते हैं ये पाकिस्तानी है तो मुसलमान ही होंगे, ठीक है। अब लोग इधर आके ये बच्चों को फंसाते हैं, पहले जो अरबी मुसलमान है, लेकिन इनको पता नहीं है, उनको बताते हैं हम पाकिस्तानी हैं। अब इनकी को मैं आपको बात बताता हूँ, ये गवर्नमेंट को कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हम पे जुल्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आज़ादी नहीं है उधर, मजहबी तौर पे हमें आज़ादी नहीं, हम पे जुल्म करते हैं। और लोगों को, नॉर्मल लोगों को बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, क्यों, अवाम को बताते हैं कि हम पाकिस्तानी, अवाम समझते हैं ये मुसलमान है, पाकिस्तानी हमारी तरह ही है, जो मुसलमान हैं दूसरे अरबी मुसलमान हैं, उनके बच्चों को पहले फंसाएंगे। और इनकी मस्जिद में, भाई मैं आपको बताता हूँ, इनकी मस्जिद में मेरे दोस्त चले गए एक दफ़ा ना, सोमालिया के थे ये वो, मस्जिद ना उनको बोले, मिर्जवाड़ा सॉरी बोले। सॉरी 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 इबादत मस्जिद का मुसलमानों की होती है। तो ये उधर चले गए इनकी इबादत गाह पे, उनको लगा ये पाकिस्तानी है, क्योंकि वो, मैं भी पाकिस्तानी था, उनको लगा ये पाकिस्तानी इबादत गाह है तो मुसलमानों की होगी। कहते भाई उन्होंने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत अच्छा वेलकम किया उन्होंने, पानी पूनी हमारे सर पे ला के, टोपी भी खुद ही रखी, सब कुछ किया। कहता है तो उन्होंने नीचे, कहता है मुझे कहता है भाई तुम्हारी मस्जिद में नीचे वो भी लगा हुआ है, प्ले स्टेशन। इनकी सोच देखें, ये बच्चों को फंसाते हैं, ये घेरा डालते हैं, भी बच्चों को लालच देंगे, नीचे खिलाएंगे, ये बच्चों को प्ले स्टेशन वगैरह खिलाते हैं, उनके बहाने ला ला के अपनी तरफ माइल करते हैं बच्चों को, जो मासूम बच्चे हैं। मैंने कहा भाई नहीं, हमारी मस्जिद में तो ऐसा कुछ नहीं होता। कहता है वो फलानी फलानी जगह। मैंने कहा ओए वो मुसलमानों की नहीं है वो। मैंने उसको फिर बताया, वो लोग समझते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर है, उसके बाद भी आएगा, वो आखिरी है पैगंबर, वो आखिरी पैगंबर है जो पूरे सारी दुनिया के मुसलमान मानते हैं उनको। तो ऐसे ही बच्चों को इधर ना, बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं उनको पहले करते हैं। और इनके बच्चे भी भाई बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है इनके बच्चे। वो उन्होंने इनको बच्चों को सिखाया हुआ भाई ऐसे ऐसे करके इनको अपनी मस्जिद में लेके आओ। और हमारे घर में ये वो भी फेंक के गए हैं, उसका क्या नाम है, जो ये कागज़ नहीं होता, ब्रीफ, बिल्कुल ब्रीफ, ये वो। और नज़ीर इनके कॉल डाल दो, ऊपर आ जा पुत्र, हिम्मत कर।
ये वो ही काम करते हैं। और मैं आपको और कुछ बताता हूँ, ये भाई ने कहा है ना रबवा से ख़त्म हो रहे हैं, भाई ये रबवा से ख़त्म नहीं हो रहे, ये बल्कि बाहर आ रहे हैं। ये इधर मैं आपको बताता हूँ, अली ये भाई आपको कैसे आ रहे हैं जी। छोड़े, मैं आपको बात बताता हूँ, मेरी जान दे टोटे, आप इतनी फिक्र नहीं करें, ठीक है। गालियां नहीं है, गालियां मैं आपको दिखाता हूँ कौन गालियां देता है। नज़ीर है, तुम जो एक नंबर के झूठे तरीन मकार तरीन शख्स हो, बात तुम्हें करने की हिम्मत नहीं है, नीचे बैठ के या ऊपर आके बकवासियत करोगे, गालियां देते हैं उत्ते आह जी हिम्मत है ही है जेड़ा लिखा है ना, मैं की लिखा है, दावते आम कोई भी मर्ज़ई मिर्जे को इंसान साबित कर सकता है। आज मेरा सबको खुला चैलेंज, एक सीट हाली पई दिया, जे तू प्यो दा पुत्तर है ना तो उत्ते आ, ਇੱਥੇ भाई 78 ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਫੜਿਆ ਦਾ, ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਯੂ ਆਰ ਲਾਇਰਸ, ਓਕੇ, ਯੂ ਆਰ ਲਾਇੰਗ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਯੂ ਆਰ ਲਾਇੰਗ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਈਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਔਕਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਛੜਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ वो। भाई एक सिर्फ एक बात मैं और करूँगा, फिर इंशाल्लाह ना मैंने सोना है, क्योंकि मैं अभी काम से आया था, नो देख रहा था प्रॉब्लम। लाइव। ये ना शायद आप सबको मजाक लगे, लेकिन मुझे बताया गया है, ये इधर से ना रबवा से पाकिस्तान फैसलाबाद के करीब है कहीं पे, उधर से एक लड़का इधर है, उसकी नेशनैलिटी इधर की है, ठीक है, उसको जर्मन नेशनैलिटी मिल गया। भाई उसने अपनी फैमिली, मैं बताऊँ आपको कैसे सेट किया, अपने सर पे हाथ मारोगे, बहन के साथ, माँ के साथ निकाह करके लेके आया उधर जर्मन पास के तो चक्करों करते में। हैं ना बेगैरत लोग, इनको क्या है, इनका तो कोई मजहब ही नहीं है। मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब आप ये देखें, ਸੈਂਡੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਾਜ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ अच्छा ਬੇਟੀ एक ਨਾਲ ਤੇ सेकंड, ਨਜ਼ਰ ਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। मुफ्ती साहब एक और वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है, ये ज़रा सुने। ये मिर्ज़ा जेल में जहन्नमी क्या कह रहा है, फिर कहते हैं कि हम क्यों इनको बाप बेटे को क्यों साथ में बिठाते हैं। ये देखें जी, ये ज़रा सुने, कितने गया जी। हाँ नज़ीर तू एडा वे ना, एडा मामा वे ना, तो इत्थे आ जा काल दे उत्ते, थले बैठ के ना बकवासियत नहीं लिखनी है, ठीक है, हिम्मत है तो काल दे उत्ते आओ। सवाल नंबर 2 जो इस हवाले से रिसीव हुआ था, वो हमारा एक यानी YouTube के ऊपर क्लिप चढ़ा था, उसके ऊपर हमने थंबनेल बनाया था, कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। बंदा ए चिट्टी पगड़ी ला के ना ते ऐसे चीज तो तेनू फांसी दे छड़े, खोती दे अन्या बचिया है कि कादियानी फिरका नहीं है, वो फितना में लख दी लानत जिन्हें तेनू इस मिंबर से बिठाया बेशर्मा। हाँ जी नज़ीर साहब आना जो उत्ते के थले बह के बस तुसी वो जिन जो डग कुत्ता भौंकदा है ना, उंज भौंकना है, गल्लां बाणे ने पे। मर्द दे बच्चे हो ते आओ उत्ते, थले बह के बकवासियत करनी शुरू कर छनी है, गालियां देते हैं। ओगे तेरा तो ये जेड़े ये ने जेड़ी दसिया सी ना कि मर्ज़ई कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला है, काल ते आ काल दे उत्ते, आ काल दे उत्ते। अब कोई बंदा बात नहीं करेगा मासवाए मुफ्ती साहब के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ਅਸੀਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, मुसलमानों ਨੂੰ जवाब देईदा। भाई अब आपकी उसमें ब्रॉड पे आएंगे तब आप लोग सारे गालियां देना छोड़ दोगे, तब जब महफिल जिस महफिल में ए गालियां नज़ीर साहब तुसी मुझे ये बताओ, अपने अल्लाह रसूल दीन की ईमान से बताओ कि आज तक तुम्हें मैंने गाली दी? नहीं, हाँ बस ये चलो जज़ाकल्लाह अगर नहीं दी, बाकी दोस्त बस जिस दिन गालियां नहीं होंगी, अल्लाह रसूल की महफिल होगी, उस दिन हम आपके पास आएंगे और बात अल्लाह करेंगे। रसूल की महफिल जी मुफ्ती साहब से बात करें। अब मैं चुप हूँ जी, आ रही है अभी तो मुफ्ती आप साहब। बात पे गालियां देते हो, इसलिए उस महफिल में मना है, जिस महफिल में गालियां दी जाए उसमें ना बैठे, बस इस वजह से ना बोले कोई भी, मैं अर्ज कर रहा हूँ।
ये जिस दिन आप लोग गालियां देना छोड़ दोगे, अल्लाह रसूल की बात मानोगे, उस दिन हम आपके साथ बैठेंगे और अच्छा बात नजीर भी साहब, सुनेंगे। एक ये छोटा सा सवाल है कि मिर्जा कादियानी को ये 10 महीने का हमल हुआ था। रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा 50 के ऊपर उसने लिखा है, मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं, वो बात सुने मुफ्ती साहब, ये आप सुबह शाम इबारतें पढ़ते हैं ना, जो नहीं बात हो चले रही है इबारत पढ़ के ना आप सुनाऊं। इखलाक के, जिस दिन आपने इखलाक की मोहम्मदी शुरू कर दिए ना, उस दिन इंशाल्लाह सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। यार ये स्क्रीन बड़ी करिएगा। इखलाक मोहम्मदी से आप लोग दूर हो बस। जिस दिन आप अच्छा ये रसूल देखें जी, पाक ये सल्लल्लाहु देखें अलैहि जी, वसल्लम ये भागने वाली बातें हैं। कोई बंदा इनसे बदतमीजी नहीं कर रहा, नहीं, कोई बंदा मतलब बदतमीजी नहीं कर रहा। वो जो है ना, सही बात होगी, अच्छी बात होगी, मुसलमानों वाली अच्छी बात बात होगी। कौन सी वाली मतलब मुसलमानों की जिस दिन बात है, मुसलमानों से जिस होती है। जिस दिन आप इंसान को जो है ना इंसानियत के दायरे में रखेंगे ना, उस दिन अच्छा ए नज़ीर बस ये साहब, बात है। बस अल्लाह ये दी अगर आप कसम चुके कहना, अल्लाह दी कसम चुके कहना, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ यार ਹਦੀਸ शायद ਤੇ भाई ਗੱਲ एक ਕਰ मिनट ਲਾਂਗੇ। जरा रुको यार, मैं मौजू फिर चुप डिवर्ट हो जाना है। देखे ना, किसी के मौजू देखो, किधरे और टुर ਜਾਂਦਾ है। किसी ਗੱਲ के ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ तो ਰਹੀ ਹੈ। 10 महीने किसी के माँ बाप को गाली दो तो वो आप समझे कि वो आपकी तरफ नहीं, कहते हैं, गाली ये ना है ना, दें आप, कोई मसला ये नहीं, ना मना है गाली ना। दें। तो वो नजीर साहब बात आप ये है गाली कि ना आप दें, लोग इसका जवाब दे दें। गाली ना जो है दें, ना, इसका मेरी जवाब दे बात दें। सुने, जवाब तो सब मालूम है, आप लोग हर चीज को बिगाड़ कर जी समझते नहीं बता हैं, दें, बिगाड़ अभी के तक करते मुझे हैं। तो नहीं समझ आई। गूगल आप ये कहती देखें, है कि 10 महीने का अमल खोती को होता है। मिर्जा साहब मतलब कहते हैं कि 10 महीने आप, का अमल उनको हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलोगे ना, तो फिर सब अच्छा भाई होगा। अभी आप कौन से नहीं हो। नक्शे कदम में है कहीं कि भाई आप 10 महीने का अमल मसीह मौत आप को होगा? अल्लाह रसूल के रास्ते पे नहीं हो। बस जिस दिन होगो भाई उस अल्लाह दिन रसूल के इंशाल्लाह रास्ते इकट्ठे में बात कहीं पर करेंगे। हो कि भाई 10 महीने का अमल मसीह मौत और को जो होगा? नीचे मेरे दोस्त सुन रहे हैं, मुसलमान भाई सुन रहे हैं, उनको मैसेज चले है कि बता अल्लाह दें ताला की फिर। बनाई हुई जमात अहमदिया है, उसकी तरफ हाँ, तवज्जो मतलब करें। खोती को अल्लाह मसीह रसूल मौत की मान बात लिया जाए, सुने, बताएं। सच्ची जमात, नारी जमात जो है ना, मतलब 10 महीने का अमल गूगल कहती है 10 महीने का अमल खोती को होता है। मिर्जा कादियानी कहता है मुझे हुआ। बताइए, चलो ये है, ये औकात है। दौड़ गए, अब एक मौजू पे रह के बात करे, जवाब दे ना। मिर्जा कादियानी कहता है मुझे 10 महीने का हमल हो गया, 2 साल तक मैं औरत बना रहा, फिर मुझे 10 महीने का हमल हो गया, फिर मैं मसीह मऊद बना। वो मसीह मऊद बनने का तरीका बता रहा है कि 2 साल तक औरत बनो, बाद में 10 महीने का हमल हो, उसके बाद मसीह मऊद बन जाओ। गेम ओवर हो गई जी, बात करेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं यहाँ पे ना, अच्छा ये जितने मर्ज़ई नीचे गालियाँ लिख रहे हैं ना, इनको म्यूट करो मॉडरेटर। हमें इन बेशर्मों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती साहब ये गालियों की बात कर रहे हैं ना, मैं गालियाँ दिखाता हूँ। किधर गया मेरा दूजा फोन? हेलो फड़ो जी गालियाँ। ऐ जी गालियाँ। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 31, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲ ਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ, ਇਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। 3 ਹਵਾਲੇ ਜੇ, ਪੂਰੀ 1000 ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰਵਾ ਸਕਨੇ ਆ, ठीक है। पूरी 1000 गाली, 1300 गाली है, लेकिन मैं 1000 कर सकना, ठीक है जी। वालेकुम सलाम। एक नज़ीर साहब एक सेकंड, मुझे जरा आपसे ना म्यूट एक शिकवा है, छोटा सा शिकवा। जी मुफ्ती साहब हुक्म। छोटा या कोई ਵੱਡਾ शिकवा नहीं। हुक्म सरकार। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, लेकिन मैं जिस तरीके तैयार किया सी उंज नहीं है। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਹਣਿਓ, ਇਹ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਵਹਾਈ ਏ ਗਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹਾਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ,
ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਉਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਬਸ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਥਾ ਬਰੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਦੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐ ਸੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦਵੇ। ਬਸ ਉਹੀ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜਦੋਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਗੋਡ ਸੇਕ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਯਾਰ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਚ ਤੋਂਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਜੀ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, नासिर अंसारी नसारी नासरी, मैं आप लोगों नासरी की डिस्कशन सुन रहा हूँ। जी हाँ जी, हाँ जी, आपने कोई बात करनी है? नहीं, मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ भाई। यहाँ पर अच्छा जो जी। ये जो आते हैं ये कादियानी वगैरह जो गाली देते हैं उनको जवाब मैं देता हूँ। नहीं, गालियां तो हम देते नहीं है जी। जो हक और सच पे होता है ना वो गालियां नहीं देता, और जो झूठा होता है ना वो सिर्फ बुतान लगाता है कि हम लोग गालियां देते हैं। उनको ठीक के है, लिए फिर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप अपनी डिस्कशन जारी रखें। सबको सलाम। थैंक यू सो मच। ये देखें जी, ये है रूहानी हज़ाइन, जिल्द नंबर 14, सफ़ा नंबर 53। नजमुल मेहदी, दुश्मन हमारे बियाबानों के हंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गईं। ठीक है, ये एक हवाला है। गालियां कौन देता है जी? ये मिर्जा साहब की किताब है। आगे सुने जी, रूहानी हज़ाइन, जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर 31। अनवारुल इस्लाम, हमारी फतह का कायल ना होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वल्दुल हराम बनने का शौक है, वो हलाल ज़्यादा नहीं। ये हुंदियां जे नज़ीर साहब गालां, इनू कहंदे जे गालां। बिल्कुल अच्छा, ये जो अभी आए थे बात कर रहे थे, ये क्या नाम है इनका? ए नज़ीर साहब, नहीं नहीं, वो ये अभी जो कर रहे थे ये दो। अच्छा ये नासिर नासरी। नासिर, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। नासिर नासरी भाई, आप मिर्जा गुलाम कादियानी की फतह के कायल हैं? मिर्जा कादियानी वो क्या खंजीर है? हाँ, मुफ्ती साहब गलत बंदे को सवाल पूछ लिया तुमसे। नहीं गलत नहीं, सही बंदे ने के असली बंदे को ਉਹਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਰ। ਤੈਮੂਰ ਆਇਆ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੀਆਂ ਤੈਮੂਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸ ਬੰਦਾ ਵੇ। ਵਾਲੇकुम सलाम। अहमद करावा यार मियां तैमूर और दीगर जो दोस्त बैठे हैं, यार ये मेरी नई आईडी है, इसको ना मेहरबानी करें आप हजरात। यार एडमिन भी बना दिया जे शाहिद ते। मुफ्ती साहब ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਨੇਟਰ ਹੋ ਆਈ ਥਿੰਕ। अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਕੋਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਿਊਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਆਈਡੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਈਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੁਕੜੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਟਿਕਦੀ ਪਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। यार कोई बंदा ऐसा चुको कि जिहदे नाल डिबेट हो सके, गुफ्तगू हो सके। कोई बंदे सारे जदों अपने ही होणगे, मुसलमान ही होणगे ते ओह फायदा ते कोई ना होया। ते जे ते सुनना ही है सब ने ते ओह थल्ले बह के सुनन, जगह कोई खाली करन थोड़ी जही। सारे अपने ही बंदे जदों बैठे होणगे ते फिर ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। गल की ब्रॉड गिर गई थी नीचे, तो
اس لیے دوبارہ واپس ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਤ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਕੋਈ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਫਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਈ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ ਕਾਲ ਤੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? वसीम की ना लिखे, वलीद पता नहीं, वलीद साहब ने। जज़ाकल्लाह खैर, बस सारी बातें हो गई, मैं इसको लीव कर देता, फिर आप नीचे बैठ के जज़ाकल्लाह। नासर नसर नासर नसीर। अच्छा मुफ्ती साहब, नसीर साहब कोई बात करनी है आपने? मुफ्ती मुबशिर शाह साहब जी, मेरे ख्याल में मैं ब्रॉड बंद करना, क्योंकि मैंने सब कुछ ब्लैक नजर ना ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया हूँ यार। प्लीज डबल टैप कर दे रहो यार प्लीज, 6 घंटे तो ब्रॉड चल रही है। करो यार, चश्मे ला लेना तो चश्मे तो बगैर तेरे किਵੇਂ नजर आएगा, चश्मे ला भाई तुम्हें मिर्जा बन नहीं सारा काला हो गया, ब्रॉड डिगी ये ब्रॉड डिग पी सी 7 घंटे हो गए ने ब्रॉड चलाना पे काका छपाई। लो जी मुफ्ती साहब तुसी जणा ना बड़ियां गल्लां ने यार माशाल्लाह, शायद भाई बड़ियां गल्लां ने, अल्लाह को आजाद होवे ते बड़ियां गल्लां ने। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮੋਡੀਨੇਟਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਹੈ ਨੇ, ਠੀਕ, ਜਜ਼ਾਕਲ। ਤੇ ਆਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਓ, ਕੋਈ ਤਬਲੀਗ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਰ ਜੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਲੀਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਜੀ, फैसल साहब रियाज जी मोहतरम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मुफ्ती साहब, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। मुफ्ती साहब मेरे एक 2-3 सवाल हैं। अच्छा जी, मैं असल में 2-3 दिन पहले ना, मैं तो इस लाइव पे नया नया आया हूँ, मुझे इसका इतना पता नहीं था, मैं इधर कैलिफोर्निया में होता हूँ। अच्छा, तो 3 दिन पहले मैंने एक देखी है वीडियो इसी तरह ही ना जी, वो ऊपर लिखा हुआ था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए, ये किसी कादियानी ने लगाई हुई थी वीडियो। तो मुझे वो ब्राड का पता नहीं था, मतलब ये कादियानियों की है जी। अच्छा, के अंदर घुस गया, सवाल वगैरह मैंने उनसे पूछे हैं जी कि मतलब ये आपने क्यों लगाया हुआ है, कहता है तो ऐसा ही है ना। बाद में फिर मैंने बाद में जब वो कॉल बंद की तो फिर देखा मैंने कि ये तो माशाल्लाह वो दूसरे हैं। कहते हैं जी हमारा अकीदा, मैंने कहा ये तो क्रिश्चनों का अकीदा है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ तो यहाँ पे मेरी अक्सर बहस होती रहती है क्रिश्चनों से कि वो कहते हैं जी हज़रत ईसा फौत हो गए हैं, तो उनका भी यही अकीदा। नहीं क्रिश्चियन का ये अकीदा तो नहीं है, नहीं क्रिश्चियन का ये अकीदा कि हज़रत ईसा फौत हो गए हैं। नहीं ये अकीदा नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं तो जैसे भी जी, मेरी यहाँ पे जिससे भी अगर कोई बहस हुई क्रिश्चियन से, वो यही कहते हैं जी वो ऐसा दुनिया का कोई एक क्रिश्चियन भी ये नहीं है, कोई है तो ले अभी ले, ये अकीदा है ही नहीं उनका। वो कब कहते हैं कि ये हज़रत ईसा फौत हो गए, मतलब वो ने सूली पे चढ़ाया गया था, ये हुआ वो हुआ, इस तरह से कुछ नहीं। वो तो ये अकीदा है कि सूली पे चढ़ाया गया था, 3 दिन तक या 7 दिन तक वो फौत रहे, बाद में जिंदा हो गए, जिंदा हो के वो आसमान पे गए, उनका जी ये ऐसे जी मतलब फौत तो हो गए ना उनकी नजरों में। नहीं भाई, हो के जिंदा हो गए हैं। अच्छा, हमारे नजदीक ये है कि उनको सूली पे चढ़ाया ही नहीं गया जी, अल्लाह ने, बगैर सूली पे चढ़ाए उनको जिंदा आसमान पर अल्लाह ले गए, और कुर्बे क़यामत में वो जिंदा आसमान से नजूल करेंगे, ये हमारा अकीदा है जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैंने उनसे बोला, मैंने जी हमने तो शुरू से यही पढ़ा है कि वो कहता है कुरान में लिखा हुआ। यार मैंने बोला मुझे इतना इल्म नहीं है। वो कुरान की कौन सी आयत उन्होंने दी थी? पता नहीं, वो अपनी तरफ से कुछ बोलता रहा बड़ा कुछ। मैंने उसे ये बोला, मैं कोई यार मुफ्ती साहब से मैं राब्ता करूंगा। तो उनसे आपने ये नहीं पूछा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हों या मुर्दा हों, इससे मिर्जा कादियानी का क्या ताल्लुक है? वो ये तो बता रहा हूँ आपको, उनका ये ताल्लुक है कि वो कहते हैं जी अभी
जो वो मसीह थे वो चले गए, वो अभी वापस नहीं आएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, उसकी चलो जी, जगह वो तो हो गए फोत, उसकी बकौल जगह कादियानियों के, बकौल कादियानियों के वो हो गए फोत। अब मिर्जा कादियानी एक जानी था, शराबी था, वो जानी और शराबी की ज़िनाकारी और शराब नोशी कैसे खत्म होगी? भी वो बोलते हैं जी कादियानी साहब आएंगे उसकी उनकी जगह पे। ओ भाई वो तो चलो ठीक है, मिर्जा कादियानी आ गया, तो क्या एक जानी और शराबी मसीह बन गए? ये तो मेरा इतना इल्म नहीं है, सच्ची बताऊं ना, मैं इतना कोई दीन को समझता वो हूँ। आपको इल्म नहीं है, आप ऐसा करें, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं आप? जी थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत, अच्छा। तो यूट्यूब पे एक चैनल है खत्म नबूवत टाइम्स, सही। क्या नाम बताया मैंने? नबूवत टाइम्स। खत्म नबूवत टाइम्स, उसके ऊपर आप जाके देखें, हमारे हजारों की तादाद में मुनाजरे और लेक्चर्स इस मौजू के ऊपर मौजूद है। अच्छा खत्म नबूवत टाइम्स नाम याद रहेगा? जी जी याद रहेगा, मैं दूसरे फोन पे साथ लिख रहा हूँ। हाँ, ये एक नजर इसके ऊपर डाल ले, तस्वीर ले ले जल्दी जल्दी। तैमूर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शाद भाई ये ले जी खत्म नबूवत टाइम्स, तस्वीर ले लें बस। सही हो गया। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं बात शुरू करूं फिर? किस मौजू पे जी? ये जो मैंने वीडियो सुनाई थी उसके पहले, उसके बाद जो ब्रॉड गिर गई थी। हाँ हाँ, ये असल में यार कोई सामने आए बंदे इतने बैठे हुए हैं, कोई बात करने वाला आए यार। कोई कादियानी किधर टुर गए यार, किधर बढ़ गए हो कादियानियों? आओ तबलीग करो यार, सानू भी तो कोई तबलीग करो। अब ये देखो 66 बंदे बैठे हैं, इनको तबलीग करो, हमें करो, लेकिन आमने सामने आ करो। ये अभी जो कादियानी मुरब्बी नजीर आया था, ये बड़ा महान मुरब्बी है इनका। कादियानी मुरब्बी अलीम भी नीचे बैठा हुआ है, आओ तबलीग करो हमें। नहीं मुफ्ती साहब अलीम नूं कुछ ना कीओ प्लीज, अलीम जेड़ा ना नहीं ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਢਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏ। नहीं ਅਸੀਂ अलीम ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਬਈ। ਅਲੀਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਲੀਮ ਬਣਾ ਦੇਣੀ? नहीं नहीं नहीं। अच्छा अलीम साहब, मुफ्ती साहब एक सेकंड, मैं इसको मैसेज दे देता हूँ। अलीम साहब ये देख लिया आपने कि ए नज़ीर साहब आए और इन्होंने आके जनाब हम एक पे छोटा सा बता। सवाल हमने किया है कि मिर्जे कादियानी को 10 महीने का हमल हुआ, गूगल कहती है 10 महीने का हमल खोती को होता है। बताइए कि क्या मसीह मऊद का नाम खोती है या खोती का नाम मसीह मऊद है? बताइए, क्या कुरान हदीस में कहीं पे लिखा है कि जो मसीह मऊद होगा उसको 10 महीने का हमल होगा तो फिर वो मसीह मऊद बनेगा? बताओ ना यार, कुरान हदीस से बात करो। आओ, तुम लोग बड़ा कहते हो जी कुरान हदीस से बात करनी है, आओ कुरान हदीस से बात करते हैं। दिखाओ कुरान की कौन सी आयत है जहां पे लिखा है कि आने वाला जो मसीह है उसको पहले 10 महीने का खोतियों वाला हमल होगा, बाद में वो मसीह मऊद बन जाएगा। करो बात, आओ तबलीग करो हमें। मुफ्ती साहब आपके सवाल जो है ना वो बड़े बड़े ठंडे हैं, ठीक है? एक शाहिद सेकंड भाई, तैमूर भाई, मैंने ना वो ना मैं एक सेकंड। छोटी सी बात ऐड कर दूं, फिर उसके हिसाब से आप अपना जुमला जो सा ना ज़ाया ना हो जाए ना। शाहिद भाई आपका जुमला मैं ज़ाया नहीं होने देना चाहता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तकरीबन 21 कादियानी नीचे बैठ के बड़े आराम से सुन रहे हैं। अब आप इरशाद करें। अच्छा जी, अलीम साहब, मुफ्ती साहब का जो सवाल है ना वो बड़ा ठंडा है। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि बड़ा ठंडा सवाल है। ये जो मैंने इबारत लिखी है मुफ्ती साहब को थोड़ा सा नीचे किया है, इस इबारत की वजह से कि जो हमारा कॉन्टेंट्स है वो आपको दिखा दूं कि दावत आम कोई भी मर्ज़ई, तकलीफ बड़ी हो रही है शाहिद भाई, थोड़ा हो कोई भी मर्ज़ई मिर्जे को इंसान साबित कर सकता है। आज मेरा खुला चैलेंज। ये जो मैंने इबारत लिखी है ना,
इसका अच्छा मतलब ये है कि बंदा आया है काला काला, इनसे पूछ रहे हैं जी भाई जी कौन है, क्या नाम है आपका? ਉਹ ਨਾਸਰ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਸੀਬ ਰਮਜ਼ਾਨ। नसीब वो अच्छा पीछे जी, रमजान साहब म्यूट खोलो प्लीज। फैसल साहब ले नहीं आपने बात समा कर रहे ली है, बात आपकी कंप्लीट हो गई है? जी जी सर। आप ना नीचे बैठ जाइए मेरे भाई, ठीक है? ठीक हो। अच्छा जगह थोड़ी सी दे दिया नसीब साहब आपका ने कोई बात करनी है? नहीं करनी, चले आप भी नीचे बैठ जाए। अच्छा चले बात करें शाहिद भाई। अच्छा तो मुफ्ती साहब, आज जिस जहन से मैं बैठा हूँ ना, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ का कायल हूँ कि मुफ्ती साहब आपके तवस्सुफ से हम इतने हो गए हैं कि कोई मर्ज़ई जो है ना हमारे सामने टिक नहीं सकता। आप तो बहुत दूर की बात है मुफ्ती साहब। तो ये जो ए नज़ीर साहब से आपने सवाल पूछा ना, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ वो बहुत ठंडा सवाल था। जो मैं पूछने वाला था ना कि मिर्जे को सिर्फ और सिर्फ इंसान साबित कर दो, मैंने नेक का भी लफ्ज हटा दिया यहाँ से। इसलिए हटाया है कि आज जो मैं सवाल पूछूंगा ना वो आपके पड़खचे उड़ा देगा कि मिर्जा खुद बखुद नंगे का नंगा जो है ना वो इस ब्रॉड पे अच्छा शायद भाई घूमता कुछ फिरता नई नजर आएगा। चीजें भी कौम को हमें देनी चाहिए। चलो अब बार बार वो पुरानी चीजें भी हम दोहराएंगे, वो कोई मुजायका नहीं इसमें, लेकिन नई चीजें भी हम कौम के सामने रखेंगे। अच्छा यार ये कादियानियों एक हवाला नोट करो, खुतबात महमूद जिल्द सोम सफ़ा 448 है, और ये कादियानियों का 2 नंबर खलीफा जानी वड्डा बशीरा लिखता है कि इस्लाम की रूह से एक हिंदू और एक यहूदी लड़की के साथ निकाह हो सकता है। ये कौन सी इस्लाम की रूह है, कौन सी कुरान की आयत है या हदीस है, ये कौन सा इस्लाम था? ये है कादियानी फिक्का, ये है कादियानी दीन, कादियानी मजहब, ये कादियानियों की नई शरीयत। क्योंकि मिर्जा कादियानी कहता था मैं साहब शरीयत नबी हूं, मैं एक नई शरीयत लेके आया हूं। तो ये कादियानियों की नई शरीयत के अंदर एक हिंदू, एक मुशरका, एक बुत परस्त लड़की से भी निकाह हो सकता है। ये देख ले, ये कादियानियों की शरीक। कोई कादियानी बताएगा? अलीम साहब बैठे हैं, नजीर साहब बैठे हैं, और भी कादियानी बैठे हैं जिनको मैं नहीं जानता। आओ जवाब दो भाई जी, बात जारी रखें। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो ए नज़ीर साहब आए थे ना, ये इस चक्कर में आए थे कि हम वफात ईसा और हयात ईसा पे बात करेंगे, ठीक है? I'm really so sorry, I'm really so sorry, I'm really so sorry। नहीं ना ही रोकना ही नहीं, आए उस पर ही करें, आए। लेकिन पहले उस मसले को छेड़ने से पहले ये बताना पड़ेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हो या मुर्दा हो, उससे मिर्जे का क्या तल्लक है? मिर्जा कैसे सच्चा साबित होगा? पहले बताना पड़ेगा। जी हाँ, वैसे तो नहीं हम डिबेट करेंगे तुम्हारे साथ इस मौजू पर। भाई एक बंदा जानी है, शराबी है, रंडीबाज है, पूरी जिंदगी वो चोरियां करता रहा, वो गुनहगार था बहुत बड़ा, बड़े बड़े गुनाह करता था। शराब और जना से तो बड़ा कोई गुनाह नहीं है दुनिया के अंदर। तो वो बंदा, जानी शराबी आदमी, वो ईसा कैसे बन गया? माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ईसा तो बड़ी दूर की बात है। जैसे ये हमारे शाहिद भाई बार बार कह रहे हैं कि उसको एक शरीफ इंसान ही साबित कर दो। नहीं सॉरी मुफ्ती साहब, इंसान शरीफ पिछले हफ्ते था। पहले इंसान साबित करो, फिर उसको शरीफ इंसान साबित करो। पहले इंसान, तो फिर क्योंकि वो कहता है किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो कहता है मैं ना आदमजाद हूं, मैं बंदे दा पुत्र ही नहीं है, मैं इंसान का बच्चा नहीं हूं।
वो अपनी इंसानियत की खुद नफी करता है, कहता है मैं इंसान हूं ही नहीं। वो कहता है मैं तो बशर की जाए नफरत हूं, मैं तो लाम नून हूं। हाँ, लाम नून अल मरूफ मिर्जा कादियानी खुद कहता है वो। चलो भाई पार्टी शुरू करो यार। जी तैमूर भाई ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਗਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ ਵੀ ਹੈ। यार प्लीज सर कंडे ने ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਾਸਮ ਹਮਜ਼ਾ ਕਾਸਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਜੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇਲਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। दो काला पई दियां मॉडरेटर प्लीज चेक करो किन्ने किन्ने कॉल पाई है। जे कोई फालतू बंदा ना तो नहीं, अपने जिन्ने बंदे ने ना प्लीज अगर आना है तो कॉल पे सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हेलो हाई करें। नहीं ये और फिर नीचे बैठ के सुने। अशरफ आए हैं, ये बांग्लादेशी हैं अशरफ साहब। यार बात सुने, मैं ना अभी थोड़ी देर के लिए गायब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब एक सेकंड रुकिएगा जरा प्लीज। जी मुफ्ती साहब हुक्म। जी बात ये कर रहा हूँ कि डिबेट करें, तैमूर बैठे हैं तो मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर तक। कोई बात नहीं आता तो बात करें, तो कोशिश किया करें कि अपने दोस्त जो होते हैं वो नीचे बैठ के सुना करें, मेहरबानी किया करें। तो कादियानियों को जगह दिया करें, ज्यादा से ज्यादा वो आके बात करें। ते मौजू यही रखना है भाई जो मैंने बताया है ना, मौजू इधर उधर नहीं जाना चाहिए। कादियानी का काम होता है कि वो आपको इधर उधर लेके जाएगा, असल मौजू पे नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। और कादियानी कोई भी कहता है कि भाई किसी मौजू पर भी मैं बात करने के लिए तैयार हूं, उसका वो मौजू ले लें, उसे कहे हम ठीक है रेडी हैं, हम करते हैं। लेकिन ये बताओ कि इस मौजू का जो तुम मौजू दे रहे हो, इस मौजू का मिर्जे से क्या ताल्लुक है? मिर्जा कैसे सच्चा साबित होगा? तो चले आप बात करें, मैं आ रहा हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। ठीक हो? मैं क्या ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। जी पूछो जी। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਈ ਹਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ? हाँ जी, इल्हाम की शरई हैसियत है। नहीं मतलब वही का दरवाजा बंद हो गया, इल्हाम का दरवाजा अभी तक खुला है। अच्छा ठीक है। अगर एक कोई बंदा कह रहा है कि मैंने इल्हाम हो रहा है तो ਉਹਨੂੰ जो कुछ इल्हाम हो रहा है वो कर सकता है या ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? भाई वो आपको भी होता है इल्हाम। इल्हाम का मतलब होता है अल्लाह पाक दिल के अंदर कोई बात डाल दे, वो हर एक को होता है, हर मुसलमान को होता है। ठीक। ये कोई ऐसी कोई चीज तो नहीं कि इसके ऊपर बड़ी जिरा की जाए। यार आम रूटीन के अंदर आप एक लफ्ज बोलते हैं यार मुझे इल्हाम तो नहीं हुआ, मतलब इल्हाम का मतलब होता है दिल के अंदर कोई। देखिए मैं गाड़ी में सफर कर रहा था तो मेरे ना एक्सीडेंट हो गया, तो मैं पता क्या कहूंगा, मैं जब ना गाड़ी चलाने लगा था, गाड़ी में बैठने लगा था, तो मेरे दिल में बात आई थी कि आज तू ना बैठ, आज तू सफर ना कर। वो जो चीज आती है ना वो होता है इल्हाम। ठीक है। अब देखें हम कोई किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती करने लगते हैं तो दिल में एक आवाज आती है ना यार तू इन थप्पड़ ना मारी, थप्पड़ ना मारी। वो जो अंदर की एक आवाज होती है ना वो ही होता है इल्हाम, वो अल्लाह दिल के अंदर डालता है। ठीक है। तो ये कोई ऐसी चीज तो नहीं कि इसको बना दिया जाए कोई बहुत बड़ी कोई चीज है, ये कोई बड़ा है, ये तो हर मुसलमान को होता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद पे बंदा अपना एक दीन ही इकट्ठा। हाँ, इसके ऊपर कोई बकायदा कोई मुनाजरे या बकायदा डिबेट या बकायदा कोई एक मजहब ही खड़ा हो जाए, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये आम है, ये आम चीज है। ठीक हो गया। नहीं अच्छा यार मैं आता हूँ भाई, आप हजरात बैठे आप गए फिर इंशाल्लाह होती है आपसे। चलो ठीक है मुफ्ती साहब, नो जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। और हैदर भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह। तैमूर भाई ठीक हो? शायद भाई ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕੱਟੇ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆ ਲਾ ਰਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਪੇ ਵੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਤੇ
ਲੋ ਜੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਇਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਲਾਈਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਓ ਕੋਈ ਲਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜ ਛੋੜੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਜਣਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲਵੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਨੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਕਾਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਨਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆਣਾ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बात करें आप। ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं। इंट्रोड्यूस क्या बात योरसेल्फ करनी है हमने? आज तो मौजू ही आपने बड़ा जबरदस्त चुन लिया है। जी बात तो ये है कि अब हम मिर्जे को अगर इंसान नहीं मानते, खुदा न खास्ता से अगर हम किसी और जानवर की तरफ तशबीह देते हैं तो वो जानवर के ऊपर भी तो ज्यादती है। अगर हम किसी और की तरफ खुदा न खास्ता करते हैं जी तो अब दिन क़यामत के वो जानवर हमारे गले पड़ गया कि आपने एक झूठे नबी के दावेदार को हमारे साथ तशबीह दी है, लिहाजा अल्लाह से उसने शिकायत कर दी कि आप हमारे मुजरम हो, तो फिर हम तो दिन क़यामत के उसमें जानवर के मुजरम बन गए जाएंगे। बेशक। सबसे पहले तो वकास साहब वालेकुम अस्सलाम। मैं अक्सर मर्ज़इयों को सलाम का जवाब नहीं देता, ठीक है, तो आपके आगे अहमद लिखा हुआ था तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं था, माजरत चाहता हूँ। भाई अहमद यहाँ में और आप क्या कहते हैं? शाहद भाई अच्छा केड़ी निशानी ला लीजिए नहीं अक्सर इनके नामों के आगे ना अहमद लिखा होता है तो इसलिए मैं थोड़ा शेषोपान में था, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। वालेकुम सलाम एक दफ़ा फिर। और ये मुफ्ती साहब ने ना आगे वो अहमद आया था ना कि इंसान साबित करो, तो मुफ्ती साहब ने जो है उसको खोती वाला हवाला दिया था। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि मर्ज़इयो हिम्मत करो, अज तुहानू शाहिद एहो जिहा हवाला देगा कि मिर्ज़ा ऑटोमैटिकली कंजर ते बेशरम ते बेहया इंसान साबित कर सा 5 मिनटां च। 100 के जिहड़ा लाइव लाइक लिया ना इस हवाले की वजह तो लिया मुसलमानों को, मैं समझ आई। ते अब मेरी अक्सर वीकेंड ते यही कोशिश होंदी है कि मैं उस्मान भाई आई कॉल पे, मेरी अक्सर वीकेंड ते कोशिश होंदी है कि मैं मर्ज़इयां नू ना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੋਏ, ਮਰੱਬੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ठीक है, तो कोई आके तो गल कर जे। एक आया टूटा भजा हो आके, जब आपके पास कोई बात होगी गालियां नहीं देंगे, कुरान और हदीस पे बात सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से होती है। मेरी जान दे टोटे हो मरज़ई काफरो, तुहाडे नाल सिर्फ गल होएगी मिर्ज़े ते, मिर्ज़े दी सीरत ते, ठीक है, ते मिर्ज़े दी किताबां ते। जे किसी च हिम्मत है तो आ जाए, जेड़ी किताब कहोगे उस किताब ते गल करसा। इन्ना क साडे कोल है वे मवाद कि मिर्ज़ा एक लानती जंदीक शख्स अपनी किताबों जो साबित होंदा। जी बात करे, मैं खामोश हूँ। जी शाह जी की हाल चाल, सेहत तबीयत ठीक है शाह जी? किहड़े शाह जी नूं कहंदे हो? इफी शाह जी उन्हां नूं अगे ट्रक वज्जा सी। शाह जी क्या ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। यार प्लीज होस्ट भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है। होस्ट भाई यार ये नीचे कौन काका स्पाई साहब बैठे हुए हैं, इनको म्यूट करें। आप क्या ब्रॉड चला रहे हैं आप यार, ये क्या हो रहा है आपकी ब्रॉड? मैं खुद ही म्यूट लगा। अच्छा तुसी तैमूर भाई आप बातों के इधर उधर नहीं करें, पहले ये बताएं 2-3 दिन से किधर थे? हाँ जी, ये सवाल करना जरूरी है सर जी। मैं कसमें भी हुण भी यूनीफॉर्म पाई है तो मैं हुण ड्यूटी तो आया जे, कल शाम दा 5 बजे दा गया है। भाई आ जाओ, आप इनवाइट तो कर रहा हूं। अल्लाह दी कसम हजे भी मैं यूनीफॉर्म पाई है तो मैं अजे फ्रैश नहीं आया। मैं कहा पहले ब्रॉड देखा, ताड़ी चलदी पई सी ब्रॉड, फौरन एंटर होया मैं ते मेरियां अखां च इस टाइम बिल्कुल लाली हैगी ते मैं सो जाना, फिर किते उठना जाके।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 7 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 7 ਹੀ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਲੈ ਦੱਸ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ। ਚਲੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆਗੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ 2 ਦਫਾ ਇਨਵਾਈਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਾਓ। नहीं आ प्यारा आया जी अमर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाईजान सब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैंने भी कल ये टिकटॉक ऑन किया तो एक वो मरज़ई साहब उन्होंने मुझे ऐड कर लिया तो वो मुझसे अजीबोगरीब सवाल करने लग गए। मैंने सिर्फ एक ही बात उसको बोली, मैंने कहा भाई सिर्फ एक बात का आप जवाब दे दें कि क्या अल्लाह ताला का कहना काफ़ी नहीं है कि आज के दिन मैंने मुकम्मल कर दिया दीन को और नेमतों को और मैं दीन इस्लाम से राज़ी हूँ? क्या अल्लाह का कहना काफ़ी नहीं था? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैं उसको ये आयत पढ़ के सुनाई, वो मुझे सिर्फ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे लेके जाते हैं। कहते हैं नहीं पहले ये बताओ अल्लाह का कहना काफी नहीं है कि आज के दिन मुकम्मल कर दिया? अगर आप अमर भाई अगर आप माइंड ना करें तो इंटरटेन के लिए जब तक मुफ्ती साहब नहीं आते कोई गाना शाना हो जाए। नहीं गाना तो मैं नहीं गा सकता भाईजान। नहीं मैं अच्छा वो शायद भाई मैं सुनाऊंगा जी अमर भाई। शायद भाई जी सर हुक्म ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਮੂਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੈਮੂਰ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਕਰਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। 150 हो गया गाना। अच्छा अगर मेरा दावा है कि अगर गाना आपको पसंद ना आएगा तो पैसे वापस कर रहा है। मैं ला देना तैमूर तेनू थल्ले। अच्छा आपस ना लड़ो मोर्डिनेटर। ए पहले सुनो जी, ए पहले मरदइयां दी सुन लो ए की कहंदा पिया। जब कोई अहमदी फौत होता है अल्लाह ताला उससे 2 बातें पूछता है, पहली ये तबलीग की थी और दूसरी ये चंदा दिया। अगर अहमदी जवाब दे मैंने तबलीग भी की थी चंदा भी दिया था, खुदा कहता जाओ भाई तुम्हें। चलो जी ये जन्नत लभ गई जी, जन्नत लभदी जी इंज ठीक है। उठो मरदैया वो वाकई ते मूंह नूं थले ला छड़े जी यार, कोई ख्याल करो मेरा एडा सोहना भरा वे। अच्छा दोस्तों ये जो गाना है ये माशाल्लाह हमारे FM रेडियो के लिए हमने लिखा हुआ है। अच्छा प्लीज सुने यार, देखें सिर्फ 2 मिनट मुझे चाहिए, तब तक मुफ्ती साहब भी आ जाएंगे। ये गाना जो है हमारी अपनी तहलीक है माशाल्लाह। नीचे हमारे बैठे हुए दोस्त बहुत प्यारे भाई, उनका नाम क्या है यार? फहीम भाई तो सिंगर है ना। उस्मान भाई नहीं, उस्मान भाई के कजन का क्या नाम है यार? वो कोड़े कजन ज़िया रसूल। ये जो गाना तहलीक किया है, मौसीकी दी है, ये ज़िया रसूल भाई की है। और ये जो गा रहे हैं ये है हमारे बहुत प्यारे दोस्त फ़हीम गौहर साहब। और ये गाना मरज़इयों के लिए हमने तैयार किया है और ये गाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ शाहिद की ब्रॉड पे चलता है, तो गाना सुने, इंजॉय करें। बड़ी खूबसूरत गजल मरबियां वास्ते MTA TV ते चलाउण वास्ते तुहाडे सामने पेश कर रहे हैं, समात करो। अगर मज़ा ना आए तो मुझे लिख दीजिएगा, मैं गाना बंद कर दूंगा। थोड़े दिना तो
थोड़े दिना तो मिर्गी पईए थोड़े दिना तो पकड़ होइए थोड़े दिना तो थोड़े दिना तो मरबी हजरात बड़ी गौर दे नाल सुनो बा हवाला हर गल हवाले दे नाल हुण नहीं आंदा पीछे हुण नहीं आंदा पीछे हुण नहीं आंदा बिगड़ गई है थोड़े दिना तो पकड़ होई है थोड़े दिना तो थोड़े दिना तो लाइव MTTV लाइव एंजॉय मुरब्बीज जरा मिर्जे दी शीरत ते गल करे ये लाश दे कोलों हमला होई सी oh yeah ये लाश दे कोलों हमला होई सी ये लाश दे कोलों हमला होई सी ओ खोती सुईए थोड़े दिना तो yes baby चुप के रखो दिना तो थोड़े दिना तो FM लाइव MDA TV शेर सुनो अपने मिर्जे दे कारनामे गंदे गंदे काम करता से और नाल जरा मोहम्मद दी बेगम दी सुंगदा सी जो oh no मोहम्मद दी बेगम दी सुंगदा सी जो मोहम्मद दी बेगम दी सुंगदा सी जो ओ सुथन तोइए थोड़े दिना तो टक्कर होइए क्यों रबियो क्या सही टक्कर होइए थोड़े दिना तो पहले ते दस्ते रुक जांदे सन yo FM छटियां रुक जांदियां सन पहले छटियां रुक जांदियां सन रजूलियत हुई है थोड़े दिना तो हुई है रजूलियत तो बाद तो फिर लेने लगियां ना दिन दे विच 100 बार रजूलियत हुई है थोड़े दिना तो पकड़ होई है लो मरबी हुण तुहाडा हक बनदा कि मैनू ना MTA चैनल ते जिहड़ा ना जो नयाब गोहर जी तो ये थी हमारी तहलीक होप कि आपको पसंद आया होगा क्या बात है मुफ्ती साहब दोबारा लगाया जाए जी अगर मुफ्ती साहब आ जाएंगे तो फिर बंद कर देंगे प्लीज नहीं मुफ्ती साहब आ गए नहीं मेरे जानना सॉरी ਬੱਲੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ जी भाईजान ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ नहीं बस सही है होस्ट भाईजान कौन कौन है उनका नाम प्लीज जी मेरा नाम शाहिद है शाहिद भाई जब मुफ्ती साहब आएंगे ना कौन से मुफ्ती साहब आ रहे हैं मुफ्ती मुबशिर शाह साहब आपकी मौजूद है इधर चलो ठीक है जब आएंगे ना तो मुझे तिलावत का मौका दीजिएगा मैं आपको कुरान पाक की तिलावत करके सुनाऊंगा जी तिलावत करने का असल में ये मौका नहीं है हम तो मिर्ज़े कादियानी की ठुकाई कर रहे हैं
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माहौल कैसा बना हुआ है, और ये तिलावत या नात के मखसूस मौके होते हैं, हर जगह ये तिलावत या नात करने का वो एक मौका नहीं होता। तो सही हो मैं गया, बहरहाल माजरत चाहता हूँ, क्योंकि कोई बात यहाँ पे नहीं। एक गंदे इंसान का हम जिक्र कर रहे हैं, तो उस गंदगी के अंदर वो फिर अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप सही कह रहे हैं, गरीज इंसान के जिक्र हो रहा है। मैंने कहा था चलो मुफ्ती साहब आ रहे हैं तो शुरुआत जो हम नहीं, कुरान से जज़ाकल्लाह, करेंगे। आपकी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर एक पाक नफीस माहौल बनाओ, वहाँ सारे मुहिब्बीन बैठे हों, तो और वो महफल भी नात की ही हो या मतलब तिलावत की महफल हो, तो जी वो जी जी, समझ में आता है कुछ इस किस्म की बातें। सही है। बसूरत दीगर एक गंद के अंदर हम देखे, अभी वो गाना लगा के हटे हैं और साथ ही वो फिर बड़ा अजीब सा बन जाता है। नहीं समझ रहे नहीं, हैं कि मैंने नहीं? कहा जब मुफ्ती साहब आएंगे, उस अभी नहीं, मैं कहा जब वो तो आएंगे। मैं तो इधर ही हूँ, मैंने कहाँ जाना, ये मेरी अपनी ब्राड है। नहीं नहीं, सही है, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं भाईजान। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, इसी तरह इनको जरा जलील करें, क्योंकि ये तो हर बंदे को उठा लेते हैं फिर उसको बड़ा रगड़ा लगाते यहाँ हैं। पे मैं एक मैं चूंकि मौजू एक आ गया, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी गुफ्तगू और कर दूं। मैं गौर जी कर रहा हूँ कि टिकटॉक के ऊपर दोस्तों, सारे दोस्तों से मैं मुखातब हूँ, जी कुछ जी ब्राडें चल रही हैं, ये लड़कियों को बिठाया गया है और नात और तिलावत और कुरान ग्रामर के साथ सिखाती हैं वो लड़कियां, या इस तरह का कोई ड्रामे चल रहे हैं। तो सही। वो पीछे पर्दा, आमिर भाई माइक म्यूट करें। तो ये चूंकि एक जनरली बात है, मैं आपको तो नहीं ना कर रहा, वो फिर सारी ब्राड डिस्टर्ब होती है। तो वो भाई वो असल में कादियानी लोग हैं। तो अच्छा, कहने का मकसद ये है कि कादियानियों का अकीदा है कि ये जो कुरान है ये मिर्जे कादियानी के ऊपर नाजल हुआ है, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजल हुआ था वो दुनिया से उठ गया हुआ है, वो खत्म हो गया है, वो दुनिया में मौजूद नहीं है वो कुरान। तो एक कुरान तो एक ही है। जब कादियानी पढ़ेगा तो कोई और माना है, जब मुसलमान पढ़ेगा तो कोई और माना है या और उसका मफहूम है। कुरान एक ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने पढ़ी तो इसका और मफहूम है, कादियानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो इसका और मफहूम है। मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, मैंने ये मुराद ली है। जबकि कादियानी पढ़ेगा तो वो मुराद लेगा कि अल्लाह से मुराद तो मिर्जा कादियानी है, क्योंकि वो रूहानी खजाइन जिल्द 5 सफा 564 के ऊपर कहता है वरअईतुनी फिल मनामी ऐन अल्लाह वतयक्कनतु अन्ननी हुआ, कि मैंने अपने एक मनाम में अपने आप को अल्लाह बने देखा तो मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूं। मिर्जा कादियानी फिर इसी 564 565 566 ये 3 सफ़े आप उठा के देखें, अरबी के अंदर वो लिखता है, कहता है कि जब मैं अल्लाह बन गया तो वलम यब की ली इरादतुन वला खतरतुन वला अमालुन, वो कहता है कि जब मैं फिर बन गया अल्लाह तो फिर मेरा अपना कोई इरादा, खतरा और अमल ना रहा। और फिर आगे वो अरबी के अंदर ही सारा लिखता है, कहता है फिर मैंने कहा कि अब मैं इस कायनात को अज सरे नो तख्लीक करूंगा। कहता है फिर मैंने जब इरादा किया, क्योंकि मेरे यल्लाश खुदा ने मुझे कहा था कि इज़ा अरदता शैअन अन तक़ूल लहू कुन फयकून, ए मिर्ज़े कादियानी जब भी तू किसी चीज का इरादा करे तो तूने बस कुन कहना तो फयकून वो काम हो जाएगा। तो कहने लगा फिर मैंने कुन कहा तो फयकून आसमान बन गए, कुन कहा तो जनाब
जन्नत बन गई दोजख बन गई, कुन कहा तो वो सूरज बन गए, चांद बन गए, सितारे बन गए। मैंने कुन कहा तो फिर मैंने जमीनें बनाई। मैंने कहा कि अब मैंने आसमान को मुज़य्यन कर लिया, अब मैं जमीन को आरास्ता करूंगा, जमीन को तख्लीक करूंगा। कुन कहा तो जमीन बन गई, कुन कहा तो आदम, मैंने कहा अब मैं आदम को तख्लीक करता हूं। मिर्जा कादियानी कहता है फिर मैंने कुन कहा तो आदम बन गया, फिर कुन कहा तो जनाब ये तमाम अंबिया बने। तो देखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पढ़ी है, दोनों ने पढ़ी है, कादियानी ने भी पढ़ी, मुसलमान ने भी पढ़ी, लेकिन कादियानी से मुराद ये है, वो ले रहा है कि मैं मिर्जे कादियानी के नाम से शुरू कर रहा हूं, जो रहमान भी है रहीम भी है। मुसलमान जब कहेगा वो कह रहा है मैं उस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूं कि जो बेमिसल बेमिसाल है। वो फरमाता है लईसा का मिसल ही शई, मेरी मिसल कोई शय नहीं है। वो फरमाता है हुवल्लाहु अहद, वो अकेला और यकता है। आप देख ले जमीन और आसमान का फर्क आ गया है। तो कादियानियों का ये अकीदा है कि ये जो कुरान है ये मिर्जे कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है, ये कुरान मिर्जे कादियानी के ऊपर नाज़िल शुदा है। ये कादियानी अकीदा है दोस्तों। ये कलमातुल फसल के अंदर सफा नंबर 173 के ऊपर मिर्जे कादियानी का बेटा कहता है कि हम कहते हैं कि कुरान कहाँ मौजूद है। अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या जरूरत थी। मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया है, इसीलिए तो जरूरत पेश आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बरोजी तौर पर दोबारा दुनिया में मबूस करके आप पर कुरान शरीफ उतारा जावे। मिर्जा कादियानी कहता है रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा 87 के ऊपर कि कुरान शरीफ खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें हैं। वो अपने मुंह की बातों को कुरान कहता है। वो कहता है कुरान तो मेरे मुंह की बातें हैं। कादियानी अकीदे के मुताबिक कुरान दुनिया से उठ गया हुआ है, और ये मौजूदा कुरान जो दुनिया के अंदर है ये वो है जो मिर्जे कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है। याद रखिएगा, ये जो जस्टिस फाइज ईसा ने उस कादियानी को रिहा किया है, मुबारक अहमद सानी को, कि जो तफसीर सगीर कादियानी तर्जमे को वो तकसीम कर रहा था, तो उसके मुजरम को रिहा किया है। तो साथ उसने ये आयत भी पढ़ी है ला इकराहा फि दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं है। तो ये अब एक नया ड्रामा पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया है कि कादियानियों का तर्जुमा बिल्कुल ठीक है, कादियानी भी तो ये तुम्हारे कुरान को ही मान रहे हैं, और ला इकराहा फि दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं है। ओ भाई कुरान कादियानियों का कोई और है। कुरान तो वो ही, अरबी अल्फाज तो वो ही है, अरबी अल्फाज नहीं बदले, लेकिन वो पूरा कुरान अरबी के लफ्ज वो कहता है कि ये मिर्जे पे नाज़िल हुआ है। तर्जुमा तो बड़ी दूर की बात है, तफसीर बड़ी दूर की बात है। कादियानी अकीदा ये कहता है कि ये देखो जी, ये जो मतने कुरान है अरबी के अल्फाज हैं, ये मिर्जे कादियानी के ऊपर नाज़िल हुए हैं। जी शायद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। मुफ्ती साहब, पहले सबसे जो आपने जिक्र किया कुरान शरीफ का, वो मैंने जिल्द लगाई थी तज़किरा की, ठीक है, जिस पे नौज़ बिला मिर्ज़े बेशरम का नाम लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है पीस बी अपॉन हिम। पीस बी अपॉन हिम जब आप दो आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है तो उनके आगे लिखा जाता है पीस बी अपॉन हिम। ये किसी और शख्स के आगे नहीं आता ये लफ्ज़, ठीक है। दूसरी बात,
जस्टिस फैज़ का जो था जिसको फैसला दिया, ये आपके दोस्त हैं, उस्ताद हैं, या मुझे नहीं पता क्या रिलेशनशिप है आपका। ये जिस शख्स की पिक्चर है ना, ये एक ऐसा मर्द मुजाहिद है मुफ्ती साहब, जिसको मैं सलूट पेश करता हूँ कि इनकी काविशों की वजह से ये आज जो है, आज ये इतना बड़ा इस फैसले पे यही पैरोकारी कर रहे हैं इस फैसले की। ठीक है जी। ये इबारत कोई बंदा पढ़े भाई, ये रिव्यू ऑफ रिलीजन सफ़ा 173, जिसको कलमातुल फसल भी कहते हैं। किसी बंदे को कोई इबारत जी नजर आ रही है तो पढ़ें भाई। जी जी मुझे नज़र आ रही है मुफ्ती साहब, मैं पढ़ देता हूँ। हम कहते हैं कि कुरान कहाँ मौजूद है। अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या ज़रूरत थी। मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया है, इसलिए तो ज़रूरत पेश आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बरूज़ी तौर पर दोबारा दुनिया में मबूस करके पुख्ता नहीं फिर मबूस करके आप पर कुरान शरीफ उतारा, आप पर कुरान शरीफ उतारा जावे। तो ये जो है ना, ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद ये मिर्ज़ा कादियानी को ले रहे हैं कि अब मिर्ज़ा कादियानी मोहम्मद है। समझ आई कि नहीं? वो दोबारा अब दुनिया में आया है तो उसके ऊपर अब ये कुरान नाज़िल हुआ है। ये अगला एक हवाला मैंने दिया था, उसको भी आप देख लें। ये पढ़ें जी। कुरान शरीफ खुदा तो की भाई हवाला किताब। ते सोने पढ़ लै सज्जन। ये हवाला मर जे, हवाला दे पढ़, रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 87। जी हजूर, मैं वो बोल रहे थे लेकिन माइक म्यूट सी मेरा। रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 87 हकीकतुल वही किताब का नाम है। कुरान शरीफ खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें हैं। मिर्जा कादियानी आगे कहता है कि मेरे ऊपर इतनी वही नाज़िल होती है। ये ले, ये पढ़े भाई। रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 220 हकीकतुल वही, मगर मैं खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन इल्हामात पर उसी तरह ईमान लाता हूँ जैसा कि कुरान शरीफ पर और खुदा की दूसरी किताबों पर, और जिस तरह मैं कुरान शरीफ को यकीनी और कतई तौर पर खुदा का कलाम जानता हूँ। अभी वो हैदर बड़ाई साहब आए थे जो सवाल कर रहे थे इल्हामात के ऊपर, तो ये देखिए इन्होंने पूरा इल्हामात के ऊपर एक मजहब खड़ा कर दिए। मिर्जा कादियानी कहता है मुझे इस किस्म के इल्हामात होते हैं कि मैं उनके ऊपर ऐसा यकीन रखता हूं जैसा कुरान और हदीस के ऊपर ईमान लाता हूं। यानी ये खुदा का कलाम है, यानी इस इल्हाम से मुराद मिर्जा कादियानी के ऊपर नाज़िल शुदा वही है, वही। हाँ, अब ये देखिए, ये जो तज़किरा है जिसका अभी वो ये दिखा रहे थे शाहिद भाई, तो ये पीस बी अपॉन हिम ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, मिर्जा कादियानी के नाम के साथ ये आपको देख रहे हैं पीस। अच्छा, ये इसका सीधा जो है ना वो यहाँ उर्दू लिखा हुई है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इल्हामात कशूफ और रोया मिर्जा खंजीर। यहाँ अंदर चले जाएं तो यहाँ पे ये देखें, वो इब्तदा के अंदर ही इसने ये लिखा है कि बारकल्लाहु फी इल्हामी का व वही का व रोया का। ये देखें कि ये कहते हैं ये मुझे वही नाज़िल हुई है कि अल्लाह ताला ने तेरे इल्हाम, तेरी वही और तेरी रोया में बरकत दे दी। समझ तो ये रहे हैं आप? मुफ्ती साहब पीछे जाइएगा, ये वो ब्लू लाइन में क्या लिखा हुआ है पहले सफे? 2 लकड़ियां 2 काने मिर्जा मरिया टट्टी खाने। थैंक यू वेरी मच। तो जी मुफ्ती साहब, ये जो तज़किरा ये कादियानियों का ये कुरान है, ये 5वीं इल्हामी किताब है, 5वीं इल्हामी किताब। पट्टी पट्टी गई, वल्ला वल्ला सीधा होया, ओला तोपा या तोपा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ जी, ये 157 के ऊपर ये एक इल्हाम मैं आपको इसका सुनाता हूँ। ये लें, ये वही नाज़िल हुई है जी, सफ़ा 157। हेलो जी,
27 ਦਸੰਬਰ 1891, 11 15 23 1 28 2 26 2 27 2 14 27 28 11 14 34 11 16 47 27 28 1 10 14 27 2 1 1 10 14 23 7 14 11 34 23 34 35 37 38 40 50 5 1 7 1 14 1 5 7 1 2 3 4 5 6 7 ਐਲੋ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਓਏ ਵਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਲੋ ਕੱਢੋ ਇਹ ਕੀ ਜੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਾਬਾ ਨਾਗਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਗਲਾ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਈ ਜਲਾਸ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਹੈ। अच्छा मुफ्ती साहब प्लीज ये जो आपके दोस्त हैं ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਨੋ ਰਜ਼ਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਦਾਦ ਲਿਖੀ ਹੈ शायद। मुफ्ती साहब प्लीज एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, इनके बारे में थोड़ा बता दें कि ये जो साहब हैं ये मतीन खालद साहब है, मोहतरम मतीन खालद साहब मुजाहिद खत्म नबूवत और ये मुझे अपना उस्ताद कहते हैं तो मैं इनको अपना उस्ताद कहता हूँ। बस कोई गल है रली मिली है। ये हकीकत ते है वे कि खत्मे नबूवत दा काम मैं इन्हां कोल सीखी है, इन्हां दियां किताबां तो मैं सीखे ते दौरे हाजर दे अगर सब तो वड्डे मुजाहिद खत्मे नबूवत अगर मैं किसी नूं मनना वा तो ऐ सामने तशरीफ फरमान है। बड़े प्यारे ने, साडे दोस्तां दे विचों ने, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ मोहतरम मतीन खालद साहब जी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, क्योंकि इनकी वजह से ये जो केस है इसकी थोड़ी सी देखभाल जो भी हो रही है ये इनकी वजह से ही हो रही है। मरदइयो चैलेंज भी उत्थे ही जे मैं बार बार चैलेंज सामने तां पे करना वा ताकि कोई गैरत दा मादा होए, किसी च कोई शर्म होए, कोई हया होए ते आ जाओ वो चैलेंज तुहाडे सामने जे। हर वीकेंड ते मैं तुहानू एवरी डे ते मैं लाइव आना, लेकिन स्पैशली वीकेंड ते मेरा स्पैशल चैलेंज हुंदा मरदइयां नू कि कोई ते आ जावे। जी मुफ्ती साहब बस ठीक है, अपना अपना किरदार अदा करो बस ठीक है। कोई सुने ना सुने, कोई आए ना आए, सानू कोई गर्द नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह साडा पैगाम पहुंच ही रहा है ना, बस ठीक है। 60-70 बंदे बैठे ने, इन्हां च कोई एक दो बंदे नू भी समझ आ गई बड़ी है, बस ठीक, एक बंदे नू भी समझ आ गई बड़ा है। जिन्हां नहीं आई अल्लाह ताला उन्हां नू मिर्जे वाली मौत देवे। नहीं अल्लाह उन्हां नू हिदायत देवे, की कर सकने। नहीं हिदायत पहलों ते जे नहीं लैनी हिदायत ते फिर मिर्जे वाली मौत ते जदों टॉयलेट च जाण उदों कुंडी ना ला के जाण, मतलब बूहा भी टुटे ते जान भी जाए। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿੰਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। अली खान आपकी आवाज कट कट के आ रही है, म्यूट लगा लें। अली खान म्यूट। जी मुफ्ती साहब। पट्टी पट्टी अच्छा मुफ्ती साहब वाला सीधा होया हुल्ला। सरकार एक होर ऐलान करना सी अज जिहड़ी है ना, अज एक स्पेशल लाइव होएगी जिहदे विच मरज़इयां का कुरान, ठीक है, उसमें जो दजल किया हुआ है और मिर्ज़े जेल में जहन्नमी का जो बयान है उसको पढ़ा जाएगा ताकि लोगों को पता चले कि मरज़इयों ने क्या कौन सी कहाँ कहाँ पे कुरान शरीफ पे दजल किया हुआ है
और मिर्ज़ा जेल में जहन्नमी ने जो 45 मिनट की बकवासियत की है उसके पीछे क्या था? प्रमोट कौन नहीं किसको कर रहे हैं? नहीं 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਜੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ जी 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ 2.5 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹਜੇ 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇਬਤਦਾਈ 50 ਮਿੰਟ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 22 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਨਾ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆ 50 ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਅਵਲ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਪਾਰਟ 2 ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਪਾਰਟ 3 ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ 50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਉੱਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਥੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਥੱਥਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਤਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾਸਰ ਉਹ ਵੀ ਤਤਾ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜ਼ਹੀਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤਤਾ ਸਾਰੇ ਤੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਆਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਦੀ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੋਰਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम ਕਿਸੇ सलाम ਕਾਦੀਆਨੀ तैमूर ਨੇ ਨਹੀਂ भाई। ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। जी जी बस मुझे 2 मिनट दे, मैं फिर निकल जाना है। मैं उस्ताद मोहतरम से उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, मैं पूछना था कि कोई आपने लाइव ये बात की है चैनल पर कि आप एकेडमी जाने का ख्याल आपने किया है और आपने कहा कि भाई ये गुफ्तगू आमने सामने तो करने के काबिल नहीं, लेकिन आप उसको सवाल एक लिख के देंगे पर्ची के तौर पर कि जो वो उधर सुनाएगा फिर उसका जवाब देगा। क्या ये बात दुरुस्त है? आपका प्लान बन रहा है ये? नहीं ये तो बड़ी पुरानी बात कोई की थी मैंने, पुरानी बात। मैंने कहा कि तू पर्चियां लेता है, तू मुनाजरे करता को नहीं, तो चल मुझे तू दावत दे, तू मुझे इस चीज की गारंटी दे दे कि मैं आऊंगा तो तू पुलिस नहीं मंगवाएगा, क्योंकि ये पुलिस मंगवा लेता है। तो और मुझे तू सामने बैठने देगा और मैं पर्चियां लिख लिख के तुझसे चलो सवाल करूंगा और वो पर्ची का तू जवाब देता जाना। ये तो पुरानी बात है, पुरानी बात की हुई है मैंने जी। अच्छा अच्छा, तो उस्ताद मोहतरम वो फिर कहेगा कि नहीं पर्ची एक आनी चाहिए, जैसे मिर्जा कादियानी मलऊन मौलाना सनाउल्लाह मरसरी को कहता था वो मलऊन कि जनाब तू पर्ची लिखेगा और मैं उसका जवाब दूंगा, आप लोगों को बोलने की इजाजत नहीं, मैं 3 घंटे बोलूंगा। तो देखे कि इस वक्त भी उस्ताद मोहतरम ने चैलेंज दिया है कि भाई तू सिर्फ पर्चियां ही ले ले और सिर्फ उन पर्चियों को पढ़ के सुना दे, तमाम कौम को अवाम को पढ़ के सुना दे और वो उसका जवाब तू अपनी गंदी जुबान से तू दे दे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं तो कहता हूँ कि अब भी इनको शर्म आनी चाहिए, मर्जियों को ये चैलेंज कबूल करें और वो पर्ची जो भी उस्ताद मोहतरम लिख के दें, वो 1 हो 2 हो, चलें यही चैलेंज कबूल कर ले कि भाई चलो ठीक है भाई मुनाजरा नहीं कर सकता, इस काबिल नहीं है, तो सिर्फ पर्चियों के जवाब दे दें। जी उस्ताद मोहतरम जबरदस्त ये तजवीज़ है, कम से कम उस्मान यही भाई मान लें। उस्मान भाई उस पर्ची में से ना मुफ्ती साहब से मैं दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरी इस आईडी को फॉलो नहीं किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ यार, शायद भाई थोड़ी थोड़ी देर तक आप ही रिपीट करते जाएं। मेरी ये नई आईडी है, इसको फॉलो भी कर ले, प्रमोट भी करें और जो भी है इसको जरा मजबूत करें भाई इस मेरी आईडी को। जज़ाक। इस आईडी पे ड्यूट मंगा रहे। अच्छा मुफ्ती साहब बात हो रही थी पर्चियों की, एक पर्ची आपने प्रॉमिस करना कि मेरी भी लेके जानी है और उसमें मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि मिर्ज़ा साहब मिर्ज़ा जेल में जहन्नमी वो जड़ी ओरल सैक्स दी वीडियो तू शाया करनी है, सैक्स एजुकेशन दी ओदी पहली सीडी तू मैनू भेजनी है। शाहद भाई ये जो चैलेंज है अगर कबूल कर लिया जाए मर्जियत की तरफ से,
मैं कहता हूँ वो पर्ची एक भी पढ़ लेगा ना, एक ही पढ़ लेगा, तो पहली बात तो वो पढ़ के पहले तो मुंह में पड़ेगा और फिर साथ ही कहेगा कि नहीं नहीं इस तरह की पर्ची कबूल नहीं होगी, तो वहीं पे मुनाजरा खत्म हो जाएगा, वहीं पे वो सारी बातचीत खत्म हो जाएगी, सारी मरज़ियत जो है वो उसका गंदा चेहरा वो देख लेगी। भाई पर्ची ही उलमा की जो है वो पर्ची और लिखी हुई तहरीर ही नहीं वो कबूल करेगा, देख लें। लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है ये, तो मैं मरज़ियत को ये इस चैलेंज को कबूल करने की दावत देता हूँ कि भाई वो कबूल करें इस चैलेंज को, तो फिर देखे होता क्या है। जी बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, मैं अभी इंशाल्लाह जॉब पे हूँ तो फिर इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम जी। अदील भाई उस्मान भाई जाते जाते ये भी सुन लें। अदील भाई मुझे सिर्फ शायद भी 2 मिनट दे दे, मैं ज़रा पानी पीने के लिए आया हूँ। शाजिब इसकी मैंने वीडियो सुनी है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ये मिर्ज़ा इंजीनियर कादियानी की 2.5 घंटे की आज मैंने वीडियो सुनी है। इसमें ना इसने एक इल्ज़ाम लगाया पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पे कि माज़अल्लाह पीर साहब मुनाज़रे पे से भाग गए थे ना। तो ये ज़रा इजाज़ुल मसीह की जो मिर्ज़े ने तजल किया है, मैं चाहता अगर आप उसका ज़रा उसका डॉक्टराइन करें ताकि सुनने वालों को जो है ना इस्तेफादा हो जाए। पहले तो बताओ तुम किधर थे, इतने अरसे बाद गायब हो गए थे तुम? शाजिद तेरी परसों ब्रॉड चलाई है मैंने। ਕਰਮਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿਧਰੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। नहीं शाहजी मैं ज़रा ना असल में कुछ काम ज़्यादा बर्डन आ गया, नीचे बैठ के सुन रहा होता हूँ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ, 1 ਮਿੰਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਰਗੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं ना अदील साहब नवी मिर्जे दी सुन लो, मिर्जे जेल में जहन्नमी दी, ठीक है। मैं थोड़ा जिहा वड्डा चैलेंज नूं वड्डा कर देना जिंदे तक मुफ्ती साहब वो जो आपने एक कवाली सी लगाई थी वो अवेलेबल है किसी जगह? वो बड़ी मजे की थी। वो सर सिर्फ मेरे पास ही है, वो मेरे पास ही है। शायद भी उसे अपलोड करें और हम उसे डाउनलोड करके और हम भी याद करें। ठीक हो गया सर, नो प्रॉब्लम। ये सुने जी, ये मिर्जे जेल में जहन्नमी की नई तो नहीं है, लेकिन सुन ले मर्ज़इयों को ये क्या कह रहा है। अच्छा, सवाल नंबर 2 जो इस हवाले से रिसीव हुआ था, वो हमारा एक यानी यूट्यूब के ऊपर क्लिप चढ़ा था, उसके ऊपर हमने थंबनेल बनाया था कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। कादियानी किसे अन्नी दिया बच्चा, जिदों भी तेरी है मैं क्लिप करांगा ना तेनू अन्नी दा बच्चा कैसा कि कादियानी कोई फिरका नहीं है, कादियानी फितना है। ये तलस्सफ की गलती नहीं है, ये तेरा दजल है। जो तेरी गल दिल च वो सच निकल के आ गई है तेरे मुंह के उत्ते कि तू कादियानियों नू क्यों प्रमोट पे करना है। कादियानियों का कुरान तशरीह से पढ़ना जायज़ है या नहीं, कादियानी ने उन्होंने कलमा तर्जुमा सही किया है। तू साबित कौन क्या करना चाहता है, तू है कौन? तू, मैं कहता हूँ कीड़ा है, कीड़े मकोड़े की तरह तू मरेगा, ठीक है। इंसानों वाली हरकतें कर जो तेरे पास है ही नहीं चीज़ें कुछ। हद होती है बेहिसी की भी। तलफ़्फ़ुज़ जी, थैंक यू सो मच टाइम साहब। शेख भाई ये चलाएं जरा मिर्जा साहब, मिर्जा ये जो जेल में ये क्या कह रहा है, जरा थोड़ा पता भी तो लगे ना, मैंने नहीं सुना ये क्या कह रहा था ये, प्लीज। नहीं सुन लें जी, सुन लें। पहले अल्फाज ही जो पता क्या है, देखें जो चीज़ बन जाती है ना आगे चाहे वो जो मर्जी बकवास करे हैं, आगे पाए उनको गालियां निकालता जाए, मुझे कोई मकसद नहीं है, ठीक है। लेकिन जो उसने तो फतवा दे दिया, अपने मुंह से कह दिया कि कादियानी फिरका है, इसका मतलब है वे कौम को गुमराह कर रहा है। इस बात को मानते हैं कि नहीं?
बहुत वैलिड पॉइंट है आपका, बहुत ठीक वैलिड है, पॉइंट है ये। बिल्कुल ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये फिरका फुरका, ये तो काफिर लोग हैं। एग्जैक्टली। तो ये फिर दोबारा सुन लें। अच्छा, सवाल नंबर 2 जो इस हवाले से रिसीव हुआ था, वो हमारा एक यानी यूट्यूब के ऊपर क्लिप चढ़ा था, उसके ऊपर हमने थंबनेल बनाया था, कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। ये बात याद रखें कि फिरका जो अगर जो अगर तो फिरका हुआ तो वो तो मुसलमान हुए ना, अगर फिरका है तो एग्जैक्टली मेरी जान दे हम टोटे, तो यही मुसलमान तो मानते ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये कोई आम सा कोई रेडी रेडी पे फ्रूट बेचने वाला भी है, टूटी फूटी रेडी, लेकिन उसका इस्लाम से ताल्लुक इतना होगा कि जनाब वो कभी भी इन मुर्तदों को, इन जंदीकों को फिरका नहीं कहेगा। जब भी कहेगा फिरका नहीं कहेगा, इनको फितना कहेगा। तो ये मिंबर पे बैठ के जिसकी औकात प्लम्बरी और मैं कहता हूँ कि पैप शैप ठीक करने वाली, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀ ਜੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨੇ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾ ਛੜੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਫੱਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੱਕੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀ ਫੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਆਂਦਰਾਂ पेटे क्लियर करके बाहर निकलेगी। सुन लो कि तो बालदों की तरफ से ये फीडबैक आया जी आप कादियानी मजहब का लफ्ज इस्तेमाल करें, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक मजहब। बाद लोगों का इतराज आया कि कादियानी को मजहब का लफ्ज इस्तेमाल करें। आगे से जो उसने छक मारी है वो भी आपको पता है। अब ये पहले एक उसने ऐड कर दिया, लेकिन उसके बाद अब अपनी जस्टिफिकेशन भी दे रहा है। ये बंदा पागल का पुत्र है यार, पता नहीं कौन लोग इसको सुनते हैं। ये समझ रहा है कि शायद रूए अर्ज पे दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्ती, आलम, मुफक्कर, मुहद्दिस सब में मैं ही हूँ, वो ये समझ रहा है। तो ये तो सबका इत्तेफाक है, तमाम उलमा इकराम का, चाहे वो कोई भी फिरके में से है, कि ये जो लोग हैं ना ये काफिर है। ये जो है ना कादियानी, मलून, गलीज, इस अल्लाह की जमीन में सबसे गंदे लोग ये हैं। ये तो सबका इत्तेफाक है। ये अपनी तरफ से जो मर्जी बकवास करता रहे, इसकी किसने माननी। वालेकुम सलाम। आमर साहब, आपने तिलावत के लिए बोला था ना? जी जी मैंने बोला था। आप किस कंट्री में होते हैं? मैं जापान में हूँ। अच्छा, इस टाइम पे क्या टाइम हुआ उधर? यहाँ पे 2:31 दोपहर के। अच्छा, मैं ना अक्सर रात को आता हूँ। जी जी। अभी यहाँ पर 5:30 हो गए हैं। कौन सी कंट्री में? यूके में। अच्छा, यूके में। मैं अभी वहाँ पे रह गया 7 साल लंदन में। अच्छा जी जी। तो अगर आपके पास टाइम हो 8, 9, 10 बजे से 8 बजे 9 बजे, क्योंकि मेरे पास एक दिन यूके के टाइम पे इधर तो वो दिन जो है ना, वो दिन बड़ा अच्छा होता है। जुम्मे रात को अक्सर जो है ना, अक्सर औकात मेरी ब्रॉड पे एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मुफ्ती साहब के तवस्सुफ से, तो कभी कभी वो ज़ियारत करवा देते हैं मदीना शरीफ की, ठीक है। तो तब जो है ना वो नातें वगैरह होती हैं और इस किस्म का सिलसिला होता है। नॉर्मली जिस गंदे शख्स के लिए ब्रॉड चलानी है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। अच्छा, लव इज मैं तो सिर्फ अपने शौक की वजह से कह रहा था। नहीं, माशाल्लाह अच्छा शौक है। मेरा भी दिल किया था कि मैं भी आपको ना नहीं करूं, लेकिन बात करने वाली होती है कि जब यहाँ पे इतनी पहले गाने में लगे हुए थे, अभी इतनी वो घटिया किस्म के लोगों की बातें हो रही हैं, तो ये महफिल का थोड़ा सा मेरे ख्याल से भी, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरी ब्रॉड पे तिलावत करें, ठीक है। जी जी। आई फील प्राउड ऑफ जब इट। आपके पास 8 बजने हैं, इधर सुबह के 4 बजे होते हैं उस वक्त। हाँ जी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह उठा होता हूँ, तो मैं देखूंगा कल अगर आप हुए लाइव तो मैं 4 बजे उठा होता हूँ वैसे मैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला।
तो फॉलो मैंने आपको कर लिया, बाकी भी जो भाई बैठे हुए हैं सबको फॉलो कर लिया हुआ। मैं आपको फॉलो बैक देता हूँ। जी जी कोई चलो जब भी मेरी लाइव ऑन हो जी 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 तो यू मोस्ट वेलकम। तो वो मैं थोड़ा मुफ्ती साहब ने शायद बात की है कि उनकी तिलावत करना हो रहा है, हमारी तिलावत। मैंने कहा शायद वो मुझे भी कहीं खुदा ना खासा अल्लाह ना करे मुझे नहीं 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 नहीं, नहीं देखें जो मेरा भी तो भी आने से मेरी इतनी